We are back with our online session, and today this session is for class 7, subject English, and we are going to study unit 1, section B, The Purple Haze. It's a story on page number 21 to 26 of your textbook, class 7 English. So what is this story all about? We have many characters in this story, and this story is taken from Marathi writer, and Marathi writer ने लिखी है ये story, and that story is translated into English. So what is the base of the story? Story has one character named girl Vasanti, and the story rotates around us. So what is purple haze? Purple haze means surrounded with mystery and confusion. Here haze means confusion. So ये पर्पल हेज का मतलब ये है कि the entire story is surrounded with mystery and curiosity. So let's start the story. So there is one school girl Vasanti. Vasanti के स्कूल में एक इंस्पेक्शन होने वाला है. इंस्पेक्शन आप समझते हो ना, जब कोई एक्सटर्नल्स आपके स्कूल में आएंगे and they are going to inspect your school. So one day what happened? Let's go with the characters first. So characters are Vasanti, a school-going girl; Mrs. Karpe, she is their class teacher; Dabolkar Kaki, she is the neighbor of Vasanti; Pramila and Shrikant, they are brother and sister of Vasanti; Mrs. Chiplungar is the inspectress who is going to visit the school; Kasturi, Pramodini, Prema and Shevanti are the girls in the group who are going to sing a welcome song for the inspection. And Mrs. Shevde is the one about whom we will talk during the chapter. So let's start. वसंती, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वसंती एक स्कूल जाती हुई लड़की है और उनके स्कूल में एक इंस्पेक्शन होगा. So उस इंस्पेक्शन का इंफॉर्मेशन देने के लिए who walked to the class? क्लास 4th में एक चलते हुए उनकी हेड मिस्ट्रेस मीन्स प्रिंसिपल आती है, and she is very tall and stout, and she talks to their class teacher Mrs. Karpe. Mrs. Karpe को उन्होंने बोला कि 8 days after we have inspection in our school. 8 दिन बाद हमारे स्कूल में एक इंस्पेक्शन है, और उस इंस्पेक्शन में सारे ही लड़कियों को बोल दो कि नीडल वर्क लेके आए. नीडल वर्क मतलब एक कपड़े के ऊपर जो भी एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा काम होता है वो सारा वो डिस्प्ले करने वाले थे. सो ऑल द गर्ल्स वर आस्क्ड टू ब्रिंग अप देयर नीडल वर्क, एंड वसंती स्पेशली थॉट कि ऑल द फोकस इज ऑन हर, एंड दैट हेड मिस्ट्रेस इज डेफिनेटली पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स Vasanti. So why Vasanti? Vasanti was a poor girl, and how poverty affected her during her school days. This is what we are going to learn in this chapter. So therefore, Mrs. Karpe, class teacher, she informed everybody. उन्होंने सबको बोला कि आपको आपका नीडल वर्क लेके आना है, वो पता नहीं. तो उसके बाद वसंती अपने बारे में सोचने लगी कि मैं अपना नीडल वर्क कैसे लाऊंगी. How will I manage? How will I tell my mother कि मुझे कपड़ा बनी आर्ट का क्लॉथ ला के दो, उसके ऊपर मुझे नीडल वर्क चाहिए इंस्पेक्शन के लिए. So she felt into confusion and many thoughts arrived at her mind कि how will I manage now? Because मैं घर जाके बोलूँ ऐसे तो मेरे घर में परिस्थिति ही नहीं है, right? So after that she remembered Mrs. Shevde, जो बेलगांव से आई थी अपने साथ एक डॉल लेकर, और उस डॉल की जो फ्रॉक थी जो उसके ऊपर नीडल वर्क था वो बेहद पसंद आया था वसंती को, और उसने अपने फ्रेंड प्रेमा को भी वो चीज़ बताई थी, right? So after that what happened? Vasanti was thinking about the same and she reached her home. और जब वो घर पे गई तो दाबोलकर काकी was waiting. दाबोलकर काकी is the neighbor, और वो वसंती के लिए टी तैयार करके रखती है. और वसंती उनके घर पे क्यों जाती है? To take the vessel of milk. जैसे अपन कहीं बाहर जाते तो हमारे neighbors हमारे लिए दूध लेते थे ना कभी, तो वैसे the same case was with वसंती. तो दाबोलकर काकी ने भी इनका मिल्क का वेसल लेके रखा था, बिकॉज हर मदर, वसंतीज मदर वॉज अ हाई स्कूल टीचर, इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल
teacher. Who? Mother of Vasanti. So her mother was really busy. और mother को हम मराठी में क्या बोलते हैं? आई. So her आई was English high school teacher and she was very busy because why? Because she had to feed her 3 children. 3 बच्चे कौन? एक तो बसंती, दूसरा प्रमिला और तीसरा श्रीकांत. तो इन तीनों बच्चों को एक माँ को पालना था. क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टोरी है ये प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम में सिचुएटेड है. इट इज सिचुएटेड इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम. व्हाई? बिकॉज हर फादर बसंती इन तीनों बच्चों में बड़ी थी और इसके पापा जेल में थे. क्योंकि जब से सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश होता है तब से उनके फादर कहाँ थे? जेल में थे. एंड ही वॉज द वन who was among many other people who were fighting for the freedom of the nation. So her mother was really disturbed by all this, but she was all the way around very courageous to bring up her 3 kids, which she is supposed to be her responsibility. जो कि उसकी आई क्या समझती थी? बच्चे मेरी responsibility and I have to bring them up. So प्रमिला was then preparing. प्रमिला प्रिपेयर कर रही थी कि जब माँ आएगी तो मैं कैसे बताऊंगी उनको कि मुझे क्या चाहिए. 1 यार्ड क्लॉथ चाहिए अपने नीडल वर्क के लिए. और उसी दौरान उसके जो भाई बहन होते हैं प्रमिला और श्रीकांत वो आते हैं एंड दे गो टू प्ले. खेलने चले जाते हैं और बसंती चाय बना देती है और उसकी जब तक माँ आती है उसके पहले शी इज ऑल रेडी और ऑल सेट. वो बताने के लिए रेडी होती थी अब मुझे क्या मांगना है. जब आपको पता है ना कैसी सिचुएशन होती है जब आपके घर में इतनी कंडीशन नहीं हो और आपको किसी चीज़ के लिए डिमांड करनी है घर में तो यू थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस बिफोर आस्किंग सच थिंग्स, राइट. सो व्हाट शी टोल्ड मी, शी डिस्क्राइब्स अबाउट माय फादर आल्सो कि माय फादर को कभी कभी आते थे हमारे घर पे बट मेरे पापा जब भी घर पे आते थे इट वाज लाइक अ फेस्टिवल बिकॉज ही वाज वन ऑफ दोज पीपल who did not live at home, जो अपने कंट्री के लिए फ्रीडम फाइटिंग के लिए बाहर जाते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे और जेल में भी रहते थे, राइट. सो उनकी माँ को ये सब देखभाल करनी पड़ती थी और उसमें वो अपने मम्मी को डिमांड के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करती थी. सो आफ्टर दैट हर मदर वॉज वेरी मच टायर्ड. उसकी माँ बहुत टायर्ड होकर आई थी जैसे काम करके आई थी. तो शी रेस्टेड और प्रमिला बसंती एकदम से उसके माँ को नहीं बोल पाई कि मुझे क्या चाहिए 1 यार्ड क्लॉथ. वो पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है कि हाँ मुझे बोलना है. देन शी स्टार्टेड, शी टोल्ड हर मदर बट हर मदर वॉज वेरी मच टायर्ड एंड शी फेल्ट अस्लीप. वो सो जाती है और उसके बाद बसंती अपनी माँ को बोलती है कि माँ अपने जैसे आपको पता है कि इंस्पेक्शन है तो उसकी माँ को ऑलरेडी पता होता है कि हाँ यस देयर इज इंस्पेक्शन क्योंकि वो भी तो स्कूल टीचर है. एंड शी टेल्स दैट हु इज द इंस्पेक्ट्रेस, मिसेस चिपलुनकर आ रही है इंस्पेक्शन के लिए. ये भी उसकी मॉम उसको बता देती है. सो आफ्टर दैट व्हेन इट्स नाइट अब वो चावल बनाने वाली है. शी इज गोइंग टू कुक द राइस ऑन स्टोव. मतलब चूल्हा जो होता है ना मिट्टी का उसमें लकड़ियाँ जला के वो अपने घर में चावल उबालेंगे या जो भी खाना बनाना होता है तो चूल्हे पे बनाते हैं. तो वैसा कुछ अपने माँ को क्लॉथ के बारे में बताने उस चक्कर में वो खाना बनाने लग जाती है बसंती. तो तभी लाइट चली जाती है. तो लाइट चली जाती है तो उसका जो घर है एक पार्टीशन करा हुआ होता है. उस साइड रेंट पे टीनेंट जिसको दिया हुआ होता है इस साइड खुद रह रहे होते हैं. तो व्हाट द एडजस्टेड कि जब टीनेंट्स के वहाँ पर जैसे आपको पता है ना मैट या एक ट्रांसलूसेंट सी एक पार्टीशन करी हुई होती है जिससे लाइट पास होती है. तो बसंती के घर में लाइट चली जाती है तो उनके जो पड़ोसी हैं टीनेंट्स वो एक लैंप चलाते हैं और लैंप जब लाइट दी जाती है जो ऑयल होता है ना लैंटर्न में लैंप में वो खत्म हो जाता है. घर में बिल्कुल भी तेल नहीं होता है तो उस हिसाब से उनके घर में पूरा अंधेरा हो जाता है. तो दैट टाइम हर मदर सेज लेट्स ट्राई द पर्पल हेज. पर्पल हेज मीन्स क्या? ये जो हमारी मिस्ट्री है घर में उसको हम अब जारी रखते हैं और क्या करते हैं जो हमारे टीनेंट्स के यहाँ पे जो लाइट है ना लैंटर्न जल रही है उसकी रोशनी हमारे घर तक भी आती है क्योंकि उनकी रोशनी बहुत ज़्यादा ब्राइट है. तो उस रोशनी में हम खाना बना लेंगे. तो आफ्टर दैट सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ बसंतीज फैमिली. तो उसके बाद अगले दिन वो अपने मदर को बोलती है
सब धो के रात को रख देती और प्रमिला और श्रीकांत को सो जाते। तो वो अपनी मदर को बोलती है कि माँ मुझे सिर्फ 12 आने का है, वो सिर्फ बने आर्ट का क्लॉथ, आई वांट दैट क्लॉथ, प्लीज बाय मी बिकॉज फॉर इंस्पेक्शन आई नीड द नीडल वर्क, और वो मुझे स्कूल में दिखाना है। और उसकी मदर क्या बोलती है, नॉट दिस मंथ माई चाइल्ड, आई बाय यू नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ मैं वो क्लॉथ दिला दूंगी बस, बट इस महीने हमसे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। सो और क्या, उसकी मदर बहुत सारा मोटिवेट करती है बसंती को कि बेटा ये सिचुएशन हमारे बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, ये सिचुएशन सब सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, सून द कंट्री विल बी फ्री फ्रॉम द एम्बिट ऑफ ब्रिटिशर्स, वी विल बी फ्री, वी विल बी ऑल फ्री, ऑल सेट एंड ऑल डेवलप्ड। ये कंडीशन बहुत दिनों तक नहीं चलेगी क्योंकि फिर तो तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे जो अभी जेल में है, जब इंडिया फ्री होगी, कंट्री फ्री होगी तो सारे लोग आ जाएंगे। सो ये कंडीशन हमारे ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, वी ऑल विल बी इन अ गुड कंडीशन, वेरी सून आवर कंट्री इज गोइंग टू गेट फ्रीडम। सो इन वर्ड्स को सुन के बसंती वॉज रियली मोटिवेटेड एंड शी फेल्ट asleep that night. So after that next morning when she got up कि अब इंस्पेक्शन वाला दिन आने वाला है, और इंस्पेक्शन वाले दिन उसने क्या सोचा, मैं मम्मी से पहले जल्दी उठ जाती हूँ और वहाँ का आशीर्वाद लेके आएगी वो। और उसने क्या किया, एक येलो कलर की उसकी फ्रॉक थी और एक पिलो था, उनके घर में एक ही पिलो था, तो उस पिलो के नीचे उसने उस फ्रॉक को रख लिया ताकि वो क्या हो जाए, प्रेस हो जाए। सो बट वो प्रेस तो हो गई, बट वो फ्रॉक जब उसने देखा तो वो फ्रॉक फटी हुई निकली। तो व्हाट शी, उसने पूरे अपने जो था आला जिसे हम बोलते हैं, एक ब्लॉक जिसमें कपड़े रखते हैं, सो शी लुक्ड इनटू दैट ब्लॉक बट देयर वाज ओनली, शी फाउंड वन ब्लाउज विद द गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, एक ब्लैक कलर का ब्लाउज मिलता है उसको जिसके ऊपर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी होती है। सो उस ब्लाउज को वो पहन लेती है और वो भी फटा हुआ होता है, तो फटाफट से दाभोलकर काकी जो बहुत बड़ी हेल्पर थी उसके पास चले जाते हैं एंड आफ्टर गोइंग टू दाभोलकर काकी शी सेज टू स्टिच द ब्लाउज, शी स्टिचेस द ब्लाउज एंड उस मॉर्निंग उसकी मॉम, जैसे कि मैंने बताया वो स्कूल टीचर थी, तो वो बहुत ज़्यादा शी वॉज इन अ हेस्ट एंड शी went to the school. So there was no time for interaction. Then without that needlework, उस needlework के बिना ही बसंती अपने स्कूल चली जाती है, और स्कूल जब जाती है तो inspectress comes. She was as usual, she was late for the school because of all the situation behind the scene which was not known to anybody outside her house. So after that when she goes to school, she was in the welcome song group along with the girls कस्तूरी, प्रमोदिनी, प्रेमा एंड शिवंती। सो इन लड़कियों के साथ बसंती होती है उस ग्रुप में, और वो लोग करते हैं, वेलकम करते हैं इंस्पेक्ट्रेस का, एंड इंस्पेक्ट्रेस वाज रियली वेरी स्ट्रिक्ट। सो शी सॉ एवरीबॉडीज नीडल वर्क एंड देन शी केम टू बसंती के पास आती है, तो बसंती को पूछते हैं कि वेयर इज योर नीडल वर्क। सो बसंती नीचे देख रही होती है, बसंती क्या सोचती है कि हाँ मैंने ये शब्द तो सिमिलर है बट ये वॉइस सिमिलर नहीं, इस आवाज़ को नहीं पहचानती मैं, मुझे ऐसा तो बहुत लोगों ने बोला है आज से पहले भी। वाई, बिकॉज मैं कभी भी कुछ अवेलेबल नहीं होता है मेरे पास तो कोई चीज़ें, क्योंकि मेरी तो ऐसी परिस्थिति नहीं है, राइट। सो आफ्टर दैट इंस्पेक्ट्रेस मिसेस चिपलूनगढ़ हु वाज वेरी स्ट्रिक्ट, शी स्टार्ट्स स्कोल्डिंग हर कि तुम्हारे पास पहनने के लिए ब्लैक कलर के ब्लाउज के ऊपर जरी का वर्क है, बट तुम्हारे पास एक 1 yard क्लॉथ नहीं है जो कि सिर्फ 12 आने का आता है, डोंट यू हैव दैट क्लॉथ एंड यू आर वेयरिंग सच एक्सपेंसिव क्लोथ्स ऑन योर बॉडी। सो दैट गर्ल बसंती वाज रियली वेरी मच एम्बैरेस्ड, शी स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर, क्योंकि उसको पता है कि उस ब्लाउज की भी क्या कंडीशन थी और वो क्यों पहन के आई वो ब्लाउज, वो सारी सच्चाई बाकी दूसरे लोगों को नहीं पता थी, सिर्फ बसंती और दाभोलकर काकी और हर फैमिली में, राइट। So she started to cry loudly, very loudly she cried and she was so much embarrassed. But at that time only Basanti's mother comes there, उसकी माँ वहाँ आ जाती है और इंस्पेक्ट्रेस को बोलती है कि आपको ये नहीं पता है कि उस ब्लैक जरी वाले ब्लाउज के पीछे the blouse she is wearing which is embroidered with zari, what is the behind scene story of that blouse, which purple haze is hidden in that blouse, you can never know about any person. तो इसीलिए क्या बता रही है कि ये स्टोरी हमें क्या बता रही है कि
what was the condition behind all that situation that had arisen in the school or with Basant. So this was the story for today. It's a very interesting story. Please go through your textbook, page number 21 to 26. Do read this story, and we are going to do the textbook work and question and answers in next online session.